Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to start a lecture number 4 of our unit number 2. In the last lecture, which I mean the lecture number 3, we have covered exercises of unit 2.1 from 1 to 5, and today we are going to cover the exercise number 6 and 7. And meanwhile, if you come across with the time, inshallah ta'ala, so we will start the unit 2.2, which is the listening and speaking. So let's start our today's lecture. जनाब, today's lecture में आपके पास exercise 6 ये pop up हो रही है. So what this reading comprehension is actually saying about the how was information about the Shah Latif early lifehood collected, why was it collected in this manner. तो अगर आपको याद हो, the answer is very simple. कैसे कलेक्ट हुई थी शाह अब्दुल लतीफ़ की जो है अर्ली लाइफ की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जी, कैसे कलेक्ट हुई थी? इन द फॉर्म ऑफ जी जनरेशन टू जनरेशन आ रहा था ना बेटा, तो जनरेशन टू जनरेशन वाला आंसर भी दीजिए ना. कैसे होगा कि कैसे क्यों नहीं लिखेंगे? तो इंफॉर्मेशन अबाउट द शाह लतीफ वाज मोस्टली कलेक्टेड फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, ओरल ट्रेडिशन से हुई थी. और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया था मिर्जा कलीज बेग हैव प्लेड अ वेरी की रोल to collect the things. ठीक है, and how he collected the things, he met the peoples who actually know about the facts of a Shah Abdul Latif Bhattai. They may met the Shah Latif in person, or maybe they heard about the Shah Latif in from their ancestors. सही है, ये एक बात हो गई है. And why this was collected? Because at that time there were no written evidence available, and there was no written things are available to demonstrate about the Shah Latif. ये बात हो गई है हमारे पास. ये दूसरा, अच्छा आपने आंसर्स लिखने, ये समझ लीजिए, ये सारा आपके आंसर्स की शक्ल में होना चाहिए. Why Shah Latif called the saint of Bhit? Because he used to stay on the Bhit, है ना. Bhit in Sindhi the word Bhit means माउंट ऑफ सैंड या सैंड ऑफ माउंट ऑफ सैंड कह लीजिए. ठीक है, एंड सिंस ही यूज्ड टू प्रे ऑन दैट स्पेसिफिक बेड, दैट इज व्हाई पीपल ऑफ्टन स्टार्टेड टू कॉल हिम सेंट ऑफ बेड, है ना. तो आप और भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. आई एम जस्ट जोटिंग डाउन द थिंग्स. व्हाई डिड शाह लतीफ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेथ? हाँ जी, क्यों नहीं उन्होंने दोबारा शादी की थी? ही डिड नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेथ. व्हाई? बिकॉज हिज हार्ट turned more and more towards the religion. आप किताब से ढूंढेंगे, you will get the answer. And the devotion, religion and the devotion, and he felt restless and seeking the new challenges. ठीक है, he found it difficult to live a ordinary life like a common man, and he refused to live a domestic life. So what he was actually doing, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, लेकिन I am telling you कि कर क्या रहे थे. He actually opted the Sufism. ठीक है, उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत का जो है एक अपना दिया जलाया और अल्लाह से ही लॉ लगाते रहे. Why did people become the Shah Latif's follower? लोग जो है शाह लतीफ के फॉलोवर क्यों हो गए? Because Shah Latif loves the God, and of course it is the promise of a God. Those who love the God, people will love them, है ना. ऐसे भी है, और भी बहुत सी बातें आप लिख सकते हैं. तो आप देख लें, इसका आंसर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए, उसके बगैर काम मजेदार नहीं होगा. उसके बाद क्या है हमारे पास? व्हाट डज द क्या लिखा है? व्हाट डज शाह लतीफ्स पोएट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, तो क्या बताता है हमारे पास? as we have a very little knowledge, only Shahjo Risalo is the only written work about the Shah Latif's work, but however we can listen from the oral explanation of a generation to generation. क्या जानते हैं हम यहाँ पर? कि he knew Arabic and Persian, and also there are the various references actually placed in the Shahjo Risalo that he is also popular. He also know about the navigation system of a Sindhi Mallas at that time, and also he know about he wrote about the many people. He also learned about the famous poets of that time like Maulana Rumi and XYZ. ठीक होगी बात. ये नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन इन द शायर लफ्ट. व्हाई डू यू थिंक दीस प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड बाय हिम? जी, कौन कौन सी प्लेसेस थी यहाँ पे? उसमें उन्होंने की थी इस्तांबुल, चाइना, समरकंद, रोम्बोसी वर्ड्स के अंदर काबुल, कंधार, दिल्ली और दक्कन. ठीक है, और क्यों उन्होंने मेंशन की थी? बिकॉज ही हैव बीन दोस प्लेसेस, माइट बी, है ना. और ही हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन द मौलाना रूमी मसनवी इन अबाउट दीज प्लेसेस, क्योंकि मौलाना रूमी जो है वो भी रूम से ताल्लुक था उनका. और इस्तांबुल, इस्कंदरिया जो उस जमाने में कहलाता था, वहां पर भी उनकी थे. तो उनकी जब कलाम पढ़ा गया तो हो सकता है वहां से उनको जो है वो ये सारी चीजें मिली हो. ठीक होगी बात ये.
Okay, so the next one is why is Shah Latif's key message in his words acceptable to everyone? ठीक है, क्यों उनका जो की मैसेज है वो एक्सेप्टेबल है? ठीक है, बिकॉज Shah Latif used to write a mystic and the spiritual poetry which carry the message of a love, and love is universally acceptable irrespective of any human race. है ना, पीछे पढ़ा था ना आपने? Okay, so next is why is Shah Latif की message ये हो गया? Can we put this message into the practice in today's world? If yes, how? If no, why? ठीक है, क्या हम इसको अपनी आज की जिंदगी में कर सकते हैं? Of course, if we really wanted to prosperous in our life in every aspect. I mean, in religious aspect as well as in the worldly aspect, we need to promote the love, because love is the only universal language which is understood by everyone. सही है? So you can write many things. आप अपने हिसाब से 3-4 पैराग्राफ. अच्छा बेटा, अब ये ज़हन में रखें, why I am not giving you the exact answers, why I am giving you the idea, because I want you to write by yourself. आपने खुद लिखने आने चाहिए आंसर, और मैंने काफ़ी इतना आइडिया दे दिया. इफ समवन इज रियली इंटरेस्टेड एंड अनएबल टू फाइंड द आंसर फ्रॉम इंटरनेट, तो वो मेरे ही वर्ड्स लेक्चर 2-3 बार सुनकर उसमें से अपने आंसर्स को निकाल सकता है. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और जो है शाह लतीफ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पॉपअप हो सकते हैं. जैसे एक सवाल आप लिख लीजिए अपने पास, व्हाट आर द की क्वालिटीज ऑफ अ शाह लतीफ़ पोइट्री? शाह लतीफ़ के पोइट्री की क्वालिटीज क्या है हमारे पास? ये भी आप एक आंसर इसमें ऐड कर लें. ठीक है, or maybe you are interested to write about the shrine, where his shrine is, and at what time his urs will be held, है ना, every year. तो every year कब होता है? 14 सफर को होता है इनका उर्स. और शराइन कहाँ पे? तो जहाँ इंतकाल किया उसी जो जगह पे इनका शराइन या मकबरा बना दिया गया. तो ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो. लिखना चाहेंगे लिख लो यार, अच्छी बात तो यही है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो बोर्ड में कुछ भी आ सकते हैं और सब कोर्स बिल्कुल नया है. तो अभी आपको 5 ईयर से भी हेल्प नहीं मिलेगी कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड द की एक्सरसाइज. अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 7 के अंदर? वर्क इन अ ग्रुप ऑफ अ 6, प्रिपेयर द क्वेश्चन, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ स्कॉलर who have studied the Shalatai in life and his poetry. ठीक है, नेक्स्ट प्रिपेयर अ रोल प्ले. रोल प्ले मैंने बताया था कि आपने किरदार अदा करना है. ठीक है, इन विच वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप बिकम एन एंकर पर्सन while the remaining member become the scholar in a TV talk show. ठीक है, करना क्या है? दिस इज अ एक्टिविटी यू मे डू विद योर होम. आप ऑनलाइन एनवायरनमेंट में तो अपने घर में साथ में कर सकते हैं. थोड़ा सा शाह लतीफ़ भटाई के बारे में डिटेल्स आपकी किताब में और एक्स्ट्रा कुछ ले लीजिए. इनके जो सारे 7 एस्पेक्ट्स कवर किए गए उनके मुतालिक डिटेल लिख लें. एक आदमी इंटरव्यूअर बन जाए, एक आदमी इंटरव्यू बन जाए, और आपस में करें 6 के बजाय 2 लोग भी काम कर सकते हैं. और राइट दोज डायलॉग्स इन योर वर्ड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल एंकर और द इंटरव्यूअर इज आस्किंग दी what do you think about the contribution of a poetry play important role in the Sufism. तो अब आप इसका जवाब बना सकते हैं. 5-7 सवाल, 5-7 जवाब, इंटरव्यू इज डन. So this is an interesting exercise and it is going to help you in writing. आपको लिखने में मदद देगी. तो लिखें, गलत लिखें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लिखने की आदत होनी चाहिए. अब तक जितनी एक्सरसाइजेस थी ऊपर वो सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी, कितने अच्छे से आपने टेक्स्ट पढ़ा. और अब ये एक्सरसाइज एक्चुअली इनकरेजिंग यू टू राइट समथिंग. ठीक है, इधर इन्होंने टीचर्स इंस्ट्रक्शन में भी कहा है कि 10 क्वेश्चंस मैंने क्योंकि घर पे होमवर्क दिए तो लिहाजा मैंने एक ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस पे इक्तफा किया है. ओके, ये हमने कहा था कि थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है. एक्सरसाइज 1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग का सेक्शन शुरू हो गया है एज वी हैव सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसंस. ठीक है, तो क्या है कि यार एक्सरसाइज 1 में वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6, फर्स्ट रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन साइलेंटली. ठीक है, अब मैं साइलेंट हो जाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा. मैं पढ़ लेता हूँ, आप साइलेंटली पढ़ें. आसपास के लोग उन्हें मैं एक क्वेश्चन आपसे साथ शेयर करके बताता हूँ और फिर आगे चलते हैं. What are the some of the harmful things that people eat, drink और smoke? ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि लोग खाते पीते या स्मोक करते हैं? तो स्मोक में तो मेरा ख्याल है कि स्मोकिंग तो हर तरह की ही हार्मफुल होती है ना, चाहे वो आप शीशा पीते हो, चाहे वो सिगरेट पीते हो, या कोई अल्कोहलिक ड्रिंक आप लेते हो, वो ड्रिंक जो कि नशा करती हो, या आप आजकल मैं आपको कहूँ तो ये जो 7 अप और कोक्स वगैरह भी हैं, इनके भी आपने बहुत से यूट्यूब पे क्लिप्स देखे होंगे कि व्हाट टाइप ऑफ अ केमिकल दे आर यूजिंग. सो दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर स्टमक. ठीक है,
और कल ही मैंने एक वीडियो देखी, एक खातून थी और उन्होंने 15 साल सिवाय कोल्ड ड्रिंक के कुछ नहीं किया। तो एक तो उन्होंने वेट ना सिर्फ गेन किया बल्कि उनके बॉडी के कई सारे पार्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह से ईटिंग के अंदर अगर बात करें तो जंक फूड्स, ये जो फास्ट फूड्स हैं हमारे पास, फ्रेंच फ्राइज से लेके और जो है क्या कहते हैं बर्गर और ब्रोस्ट तक, ये सारे के सारे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल बिकॉज दे आर नॉट वेल कुक्ड इन अ हाइजीन एनवायरनमेंट। सो दिस विल गोइंग टू, तो पहले ज़माने में देखो बाहर के खाने नहीं थे तो डॉक्टर खाली बैठे होते थे, आज डॉक्टरों के पास टाइम नहीं। इसी तरह से बाकी के 5 क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द यूज ऑफ दिस हार्मफुल थिंग अफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, मैंने ऑलमोस्ट उसमें बात कर लिया। हाउ डज देयर यूज अफेक्ट द रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। मैन इज नोन बाय द कंपनी, आदमी अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, अपनी सोबत से पहचाना जाता है। सो इफ यू आर एडिक्टेड टू सिट इन अ बैड कंपनी तो डेफिनेटली अच्छे जो लोग होंगे दे विल ट्राई टू अवॉइड और इग्नोर यू, वो आपको इग्नोर या अवॉइड करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द थिंग्स आर इन एक्शन, ये वो जगह है जहाँ पर लोग आपको सोशल आइसोलेशन में ले जाएंगे और सोशल आइसोलेशन की वजह से वो चीज़ें रह जाएंगी। अच्छा, मेरी कोई बात मुश्किल लगे गूगल करके उसकी मीनिंग जरूर देखा करें। How does their use affect their family? Of course, family life will also suffered if you are addicted of a harmful. For example, you are having an addiction of daily eating a junk food or drink or some smoke. तो इससे क्या होगा कि डेफिनेटली यू आर लूजिंग योर मनी, एंड इफ यू आर लूजिंग योर मनी वेरी कंटिन्यूअसली यू शुडंट बी एबल टू मीट योर बोर्ड एंड मीट्स, है ना। तो वो जो आपका घर गुजार चलाने का तरीकेकार होगा वो भी आप पूरा नहीं कर सकेंगे और बहुत सी चीज़ें आपकी आपके लिए नुकसानदेह होती चली जाएंगी। सो इन दैट वे दैट विल बी द हार्मफुल। हाउ डज द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग अफेक्ट द पर्सन लाइफ स्टाइल, इसका जवाब ऊपर ही दे दिया है और ये इस तरह की डायलॉग्स की शक्ल में लिखना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू नीड टू आंसर दिस इन अ पैराग्राफ। तकरीबन दो दो एक एक पैराग्राफ में इनके आंसर्स दीजिए, सोचिए, खुद से जोट डाउन करें, इस तरह से आपके राइटिंग स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है। एक्सरसाइज 2 जो है आपके पास, सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर, सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर, तो इसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक अपना काम मुकम्मल करके रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। इफ यू लाइक अवर लेक्चर्स काइंडली डू सब्सक्राइब अवर बोथ चैनल्स which are popping up on your screen. ठीक है, the NCPSS and the HPSS and the Professor MM Manzoor. And if you have any query about our academic systems, you may contact on the given below. We have our systems of a college, schools, and the coaching center. So take care of yourself. See you in the next lecture. Allah Hafiz.